Namaskar, myself Rajeshwar Evle. I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evle Sir Online Classes. तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, what are the components of prokaryotic cell and what are the functions of various components of prokaryotic cell. इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को जो पार्ट स्टडी करना है दैट इज द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, its components and the functions of various components of eukaryotic cell. In this series of video lecture, we have to discuss the first component of eukaryotic cell, that is the cell wall. Before actually going to the structure of the cell wall or the information of cell wall, let me clear some points regarding eukaryotic cell. In case of prokaryotic cell, the first point we have discussed that cellular organization. And you know that cellular organization in prokaryotic cell is simple. Now we have to discuss the cellular organization in eukaryotic cell. If you consider eukaryotic cell, this cellular organization is the complex. आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था that is simple cellular organization, but in case of eukaryotic cell, cellular organization is complex. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की यूकैरियोटिक सेल में, ये किस तरह से होती है? कॉम्प्लेक्स विथ variety of complex locomotory and cytoskeleton structures. Second point we have discussed in prokaryotic cell is that nucleus. You know that in case of prokaryotic cell, nucleus is not well defined. In another word, you may say that in case of prokaryotic cell, well defined nucleus is absent, which is not surrounded by the nuclear membrane. But in case of eukaryotic cell, this nucleus is well defined and surrounded by nuclear membrane. Now if you want to describe or define eukaryotic cell, how will you define? These two criteria are used to define the eukaryotic cell. Now how will you define the eukaryotic cell? The cell in which cellular organization is complex with variety of complex locomotory and cytoskeleton structures and nucleus is well defined surrounded by nuclear membrane is called eukaryotic cell. These are the two most important criteria applied to find out whether the cell is prokaryotic cell or eukaryotic cell. In case of eukaryotic cell, cellular organization is complex with variety of complex locomotory and cytoskeleton structures, and the second thing is that the nucleus is well defined and surrounded by nuclear membrane. Next point we have considered in prokaryotic cell. This prokaryotic cell is represented by, you know that we have studied 4 organisms while we studied prokaryotic cell. Prokaryotic cell is represented by, the first is the bacteria, second is the cyanobacteria, that is called as blue green algae or BGA, third is the mycoplasma, and last is the PPLO, pleuropneumonia like organisms. Prokaryotic cells is represented by all these 4 types of organism. Now we have to study eukaryotic cell is represented by ये जो यूकैरियोटिक सेल है
दिस यूकैरियोटिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन रिप्रेजेंट करता है यूकैरियोटिक सेल? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. In these organisms eukaryotic cells are present. ओके, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, देखो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. इन सभी ऑर्गेनिज्म में कौन सी सेल प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है. आई एम रिपीटिंग वन थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल कहां पे प्रेजेंट थी? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट mycoplasma, and last PPLO. What is the long form of PPLO? Pleuropneumonia like organisms. Got it? These are the most important point in the introduction of eukaryotic cell. Next point regarding the eukaryotic cell is that in eukaryotic cell membrane bound ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. तो देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर देयर विच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. इफ यू कंसिडर द एग्जांपल्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यू मे remember some organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosomes, all these are the membrane bound cell organelles. These membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell, but all these membrane bound cell organelles are present in eukaryotic cell. Next point regarding eukaryotic cell is that we have studied in prokaryotic cell that the nucleus in prokaryotic cell, well defined nucleus is absent, which is not surrounded by nuclear membrane, and the genetic material, that is the DNA, it is highly coiled, folded and naked. But in case of eukaryotic cell, this DNA acts as a genetic material. This DNA or genetic material organized into the chromosomes. ये जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड है. और किस में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है? क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. गॉट इट? दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स. गॉट इट? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स with variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. Nucleus is well defined and surrounded by nuclear membrane. Next, eukaryotic cell is represented by protists, plants, animals and fungi. Next point is that in eukaryotic cell membrane bound organelles are present. Next point is that DNA, that is the genetic material, is organized into the chromosomes. Now we have to discuss the first part of eukaryotic cell, and that part is the cell wall. As far as the cell wall of eukaryotic cell is concerned, this cell wall is non-living, rigid structure surrounding plasma membrane of
प्लांट्स एंड फंजाई। तो देखिए ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज दैट इट इज रिजिड स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट है? एनिमल सेल्स। ये जो सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स एंड फंजाई सेल्स, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। देखो अब आपको सेल वॉल कंसिडर करना है। सपोज दैट दिस इज अ सेल। अगर ये एक सेल है, this cell is surrounded by this thin membrane and this thin membrane is called as plasma membrane. ये जो membrane है this is the plasma membrane. Around this plasma membrane there is a presence of such type of non-living rigid covering, and this covering is called cell wall. Got it? But this cell wall is absent in animal cell. It means that animal cell is surrounded by only plasma membrane or cell membrane. It is also called as biomembrane. If you consider the cell wall of different organisms, for example, algae. In case of algae, this cell wall is made up of cellulose, galactans, next mannans, next minerals like calcium carbonate, etc. In case of plants, cell wall is made up of hemicellulose, pectin, lipids and proteins. In case of fungi, this cell wall is without cellulose. सेल वॉल में ये फंजाई में जो भी सेल वॉल है इट इज विदाउट सेलुलोज। सेलुलोज एब्सेंट रहता है तो फिर क्या प्रेजेंट रहता है यहां पर देखिए, बट कंटेन काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो देखिए these are the various organisms where plasma membrane is surrounded by non-living rigid structure, and that is the cell wall. Algae, plants and fungi. In case of algae, this cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans, minerals like calcium carbonate, etc. In case of plant cell, the cell wall is made up of hemicellulose, pectin, lipid and proteins. In case of fungi, this cell wall is, this is very important point, this cell wall is without cellulose. किसमें सेलुलोज एब्सेंट है? फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज टोटली एब्सेंट है. इन केस ऑफ फंजाई द सेल वॉल
are without cellulose but contain chitin. It is also called as chitin, it is also called as chitin, whatever the pronunciation is, but the spelling is like this. You may pronounce it as chitin, chitin and polysaccharides. These are very important points which are mentioned in your textbook, and for examination point of view you have to recall all these things. In case of algae, cell wall, cellulose, galactans, manners, minerals like calcium carbonate. In case of plant, hemicellulose, pectin, lipids, proteins. Fungi without cellulose but contain chitin and polysaccharides. Next point is that this cell wall consists of three parts, or you may say three layers. And which are those layers present in this cell wall? सेल वॉल में कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स आर देयर. अब ये 3 लेयर्स कौन कौन से है? तो देखिए, सबसे पहला लेयर है प्राइमरी वॉल, सेकेंड secondary wall, and the last or third is the middle lamella. These are the 3 layers present in cell wall. Remember the names of the layer. The first one is the primary wall, second is the secondary wall, third is the middle lamella. Now we will start from this first primary wall. This primary wall present in only young cells. ये जो प्राइमरी वॉल है ये कहां पे प्रेजेंट रहती है? सिर्फ यंग सेल्स में ही प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस प्राइमरी वॉल प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, वो सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल. इसका मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल आपको पता है? व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स? नहीं पता है? आगे जाके मेरिस्टेमेटिक सेल हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है. लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है इन शॉर्ट में आपको बताता हूं. तो देखो, अगर आपने प्लांट और एनिमल को कंसीडर किया, दोनों को ग्रोथ को अगर कंसीडर किया, इन केस ऑफ प्लांट द ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड दोज पार्ट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स और ग्रोइंग पॉइंट्स. प्लांट्स में ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है. कुछ कुछ पार्ट है जहां पर प्लांट में ग्रोथ होती है, और ये जो पार्ट्स है जहां पे प्लांट में ग्रोथ होती है, दोस पार्ट्स आर कॉल्ड एज ग्रोइंग पॉइंट्स. और ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स है, ग्रोइंग पॉइंट्स में जो भी सेल्स प्रेजेंट है, दो सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अगर ग्रोइंग पॉइंट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसलिए वो जो ग्रोइंग पॉइंट्स है उनको मेरिस्टेम भी कहा जाता है. इट मीन्स दैट ये जो प्लांट है, प्लांट में जो मेरिस्टेम है वहां पे और ग्रोइंग पॉइंट है वहां पे कौन से सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है. और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनमें सिर्फ क्या होता है? प्राइमरी वॉल इज देयर. गॉट इट? दिस प्रेजेंट इन यंग सेल. एंड वन पॉइंट यू मे राइट, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, capable of growth.
ये जो प्राइमरी वॉल है प्रेजेंट इन just like write like this, present in young cells and capable of growth. But this point is very important, they are present in only in meristematic cells. कहाँ पे present होते हैं? meristematic cell में present होते हैं. Second is the secondary wall. If you consider this secondary wall, अब ये secondary wall कहाँ पे present होती है? देखिए, it is present below or inner to the प्राइमरी वॉल. जो भी प्राइमरी वॉल है ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड में, सेकेंडरी वॉल इज देयर. लेकिन एक सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड, लेकिन कब फॉर्म होती है सेकेंडरी वॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप्स. जब भी प्राइमरी वॉल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप होती है, वही टाइम पे उसके बाद ही किसकी ग्रोथ स्टार्ट होंगी, सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ स्टार्ट होती है. एंड द लास्ट इज द मिडल लैमिला. अब देखो ये जो मिडल लैमिला है, ये मिडल लैमिला कहां पे प्रेजेंट है, लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. जो भी टू एडजेसेंट सेल्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल एंड इट इज अनदर सेल. ये जो टू सेल्स है, ये टू सेल्स में, ये टू सेल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है ना, दैट इज द मिडल लेयर. कहां पे प्रेजेंट है, इट लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल. दिस मिडल लेयर लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज मेड अप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद रखो. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. किससे बना है ये लेयर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिडल लैमिला. कैल्शियम पेक्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मिडल लैमिला. और ये कैल्शियम पेक्टेट का क्या फंक्शन है, अब देखो प्लांट में क्या होता है. Suppose that this is one plant cell and it is another plant cell, and this middle lamella present between these two adjacent or neighboring cells. अब ये दोनों भी सेल्स है प्लांट्स में, these two cells क्या होता है, ये दोनों भी सेल एक दूसरे को ग्लू होती है, स्टिक होती है. ये ग्लू करना, ये दोनों सेल को साथ में बनाए रखना, जोड़े रखना, ये फंक्शन कौन करता है, मिडल लैमिला करता है. और ये जो मिडल लैमिले का फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली उसका जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, कैल्शियम पेक्टेट का फंक्शन है. अब देखो ये कैल्शियम पेक्टेट क्या करता है, विच ग्लू और होल्ड्स टुगेदर टू एडजेसेंट सेल्स. जो भी एडजेसेंट सेल्स है, उन दोनों एडजेसेंट सेल को ग्लू करना या साथ में होल्ड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच इज द कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमिला. गॉट इट. नाउ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग दिस मिडल लैमिला. ड्यूरिंग द रायपेनिंग ऑफ फ्रूट, रायपेनिंग का मतलब समजता है आपको, ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतोय, फळ पिकणे असं जे म्हणतोय ना, फळ पिकतंय म्हणजे काय होत आहे, देयर इज अ रायपेनिंग ऑफ फ्रूट. ज्यावेळेस जब भी फ्रूट का रायपेनिंग होता है, ज्यावेळेस फ्रूट काय होत आहे, पिकतंय, ड्यूरिंग द रायपेनिंग ऑफ फ्रूट देयर इज अ सोल्युबलाइजेशन ऑफ दिस मिडल लैमिला. जब भी फ्रूट का रायपेनिंग होता है उस टाइम ये जो मिडल लैमिला है, मिडल लैमिला का क्या होता है, सोल्युबलाइजेशन होता है. एंड सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग दिस मिडल लैमिला इज दैट ड्यूरिंग सेल डिवीजन,
अब देखो, आपको अगर सेल डिवीजन समझना है तो देखिए प्लांट सेल में क्या होता है. सपोज दैट दिस इज अ प्लांट सेल. If this plant cell undergoes division, you know that cell division includes two processes. The first is the karyokinesis, that is the division of nucleus to form two daughter nuclei, and there is a division of cytoplasm that is called as cytokinesis, and after cytokinesis daughter cells are formed. अब देखो ये एक सिंगल सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल. अब देखो इसको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसका न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू डॉटर न्यूक्लिया. ओके, दिस प्रोसेस इज द कैरियोकाइनेसिस. आफ्टर कैरियोकाइनेसिस देयर इज अ साइटोकाइनेसिस. अब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है. क्या डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म. इन केस ऑफ प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहां पे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल प्लेट. अब ये सेल प्लेट फॉर्म हो गई, किसका क्या डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म देयर, टू डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, अब ये जो सेल प्लेट है विच इज फॉर्म्ड इन plant cells during cytokinesis to form daughter cells, and this cell plate formation, during this cell plate formation the first part formed is the middle lamella. ये जो सेल प्लेट फॉर्म होता है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में जो सबसे पहला पार्ट फॉर्म होता है, दैट पार्ट इज द मिडल लैमेला. Got it? These are the two important points regarding middle lamella. The first point is that during ripening of fruit, it undergoes solubilization. And second point, it is the first layer formed in the cell plate during cell division or cytokinesis. And there is one term also, that term is प्लाज्मोडेस्माटा. ये टर्म याद में रखो. कौन सी टर्म है, प्लाज्मोडेस्माटा. मैं फिर से लिखता हूं, विच इज द टर्म प्लाज्मोडेस्माटा. अब अगर आपने प्लाज्मोडेस्माटा को कंसीडर किया, अब आपको प्रॉब्लम आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा का मीनिंग क्या है. अब देखो, ये वन सेल है, ये अनदर सेल है, ये दोनों सेल साथ में है. अब ये दोनों सेल का, दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. अब ये दोनों सेल अगर एक दूसरे को कनेक्ट है, एंड दिस कनेक्शन और द ब्रिज बिटवीन टू सेल, connection or the bridge between two cell is called plasmodesmata. What is plasmodesmata? It is the connection or the bridge between two cells. अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होता है, तो ड्यूरिंग प्लाज्मोडेस्माटा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल. अब देखो ये दोनों सेल को कनेक्ट करना है, तो क्या क्या होगा, ये जो मिडल लैमेला है और जो सेल वॉल है, रिमेनिंग लेयर्स है सेल वॉल के, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी लेयर है, उसमें एक छोटा सा होल फॉर्म होता है. और होल फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेल का जो मिडल लैमेला है बीच में सेल के, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है. अब ये सेकेंडरी वॉल जहां पर है और ये मिडल लैमेला है, उसमें दोनों में क्या है, एक प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है. इस होल के वजह से ये दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है, कनेक्ट रहती है. यहां पे दोनों सेल में एक ब्रिज फॉर्म होता है, दैट ब्रिज इज प्लाज्मोडेस्माटा. अब ये प्लाज्मोडेस्माटा में क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ होल प्रेजेंट इन द मिडल लेयर एज वेल एज सेल वॉल. गॉट इट? एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सेल वॉल इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल.
द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल किस तरह से है, इट इज रिजिड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। इट मीन्स दैट इट प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल को डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेकेंड फंक्शन, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एज वेल एज इंफेक्शंस। अब ये प्लांट सेल को मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट करना। नो, व्हाट इज द मैकेनिकल इंजुरी, मैकेनिकल इंजुरी का मीनिंग क्या होता है, समझ लो। एक आदमी है, मैं जोर से इसको ऐसा मारता हूं, इसको ऐसा मार दिया तो यहां पे क्या होगा, दिस शॉक इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इंजुरी। ये जो मैकेनिकल इंजुरी है, मैकेनिकल इंजुरी से सेल को प्रोटेक्ट करना एज वेल एज जो भी इंफेक्शंस होना है उससे भी सेल को प्रोटेक्ट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ cell wall. Third function of cell wall is that it maintains cell to cell contact. ये जो cell to cell contact है उसको भी maintain रखना, this is the function of cell wall. And the next function of cell wall is that, देखो पहले 3 फंक्शन आपके समझ में आए। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये क्या नहीं होने देगा, अंदर ही एंट्री नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, क्या करके काम किया इसने, बैरियर करके काम किया। इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर larger macromolecules, and these are some of the functions of cell wall. We have studied 4 functions. The first function is that it provides definite shape to the cell. Second function we have studied, क्या स्टडी किया था, सेकेंड फंक्शन याद आ रहा है क्या आपको, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्फेक्शंस. Third function, it maintains cell to cell contact, and the last function, it prevents, it acts as a barrier for the entry of macromolecules. Got it? This is the information regarding this cell wall, and next video lecture we will discuss the plasma membrane of eukaryotic cell.